Hello dear students, welcome to the video today. So children, today we are starting a new chapter from economics. This is the last chapter for your syllabus, and here we are trying to understand poverty as a challenge. Of course, in our country, children, poverty is a big issue, and we are now, dear students, do you think poverty is a challenge? Yes. Poverty, such a big country, large population, and everybody cordially living together, so many facilities, India self-sufficient, agriculturally very forward, lot of challenges are faced by the people here. Independent India mein one of the biggest challenges is poverty. This is a big problem, multi-dimensional problem. We will be understanding it with the help of examples. In this chapter, we are understanding the way poverty is seen in social sciences, poverty and the world. We are trying to understand this poverty line with the help of few examples. Sabse pehle, and at the end, every problem has a solution. We cannot leave the problem as it is, ki problem is a problem. No. We need to find out a solution. So how do we find out the solution? Causes, पहले तो देखो बीमारी का जड़ पता करना पड़ता है कि आखिर कारण क्या है बीमारी का. Poverty is like a big ailment for the country. Anti-poverty measures हमको लेने हैं. Government is also taking. So, what are these anti-poverty measures? इतने गरीब लोगों को हमने रखा हुआ है, इस गरीबी की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? We are trying to understand that, and we will be now let's understand कि poverty ये है कहाँ से आ रहा है ये poverty? Where is it coming from and what are its basic structures? There are landless laborers in village, the people who are living in झुग्गी झोपड़ी. I mean, in the places जहाँ पे कि normally people cannot live in a very safe way. So, daily wage workers are also there. Construction sites में child workers are there. Dhabas we can see. Child laborers in India, in the country. This is something which is not acceptable. बच्चे से काम करा रहे हैं. Sorry. Not an acceptable position. They could be beggars. Children are there in tatters. मतलब फटे पुराने कपड़े को tatters कहते हैं. तो poverty we will be understanding all around us. Roughly 270 million, 27 crore people in the country are in poverty. गरीब हैं. इतनी बड़ी जनसंख्या में 27 crore is not a small number. This means India has the largest, this is a shame my dear students, largest single concentration of the poor in the world. देश के पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में रहते हैं. This is the seriousness of this challenge, and दो cases हम discuss करेंगे. Today we are discussing about two major cases of poverty. एक जो शहर में है, urban case, 33-year-old Ram Sharan, he is working as a daily wage laborer. व्हीट फ्लोर मिल में, रांची में, झारखंड में ही इज स्टेइंग. शहर में, रांची इज अ बिग सिटी. वहाँ पे व्हाट इज द कंडीशन, एंड ही इज अर्निंग अराउंड ₹1500 अ मंथ. एक महीने में 1500 रुपये वो कमा रहा है जब ही इज फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट ऑफन. मनी इतना जो है, इट इज नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 people. पुअर फैमिली, बिग फैमिली. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दे आर पुअर पीपल, लेकिन फैमिली कॉन्सेंट्रेशन एंड फैमिली मैनेजमेंट दे डोंट हैव. 4 children, सबसे बड़े वाला 12 साल का है, सबसे छोटे वाला 6 महीने का है. सो यू कैन सी दैट वेरी फ्रीक्वेंटली चिल्ड्रन आर बीइंग बॉर्न. ये देखिए यहाँ पे सम पिक्चर्स आर देयर. राम सरन की कहानी को पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है. चेक आउट दिस स्टोरी, चेक आउट दिस incident with the help of this picture. After paying house rent, no money is left. Just see, he is talking to the wife, and for the old parents in the village or village में
माता पिता की भी जिम्मेदारी रामशरण के ऊपर ही है. एंड अनमोल, यू केम सो लेट. भैया हैज गॉन फॉर वर्क विदाउट फूड. काम किए बिना भैया चले गए हैं काम पे. और भैया क्या काम कर रहे हैं? जस्ट सी, विदाउट फूड ही हैज गॉन. रामशरण की कहानी आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रू दिस पिक्चर. वेरी सॉरी स्टेट. घर में पेरेंट्स को भी ही इज सेंडिंग मनी. फादर इज अ लैंडलेस लेबरर. रामशरण पे डिपेंड करते हैं हिज ब्रदर हु इज लिविंग इन हजारीबाग फॉर सस्टेनेंस, अपने आप को, अपना काम को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. रामशरण इज लिविंग इन वन रेंटेड हाउस, वन रूम रेंटेड हाउस. एक कमरे का घर है, वहाँ पे इज लिविंग. बहुत ही क्राउडेड बस्ती है, पूरी भीड़ भाड़ है. और बस्ती के बाहर वो रहते हैं. टेम्परेरी हाउस है, परमानेंट हाउस नहीं है. हवा हुआ चलेगी तो वो घर उड़ भी जाएगा. दैट इज देयर. इमेजिन व्हाट अ सॉरी स्टेट. वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग एज अ पार्ट टाइम मेड बहुत सारे घरों में. एंड शी इज अर्निंग अनदर ₹800. कम ऑन. वेरी मिनिमल अमाउंट. They are managing meal of dal and rice twice a day, 2 times a day. लेकिन हमेशा जो है इट्स नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम. सबके लिए पूरा नहीं पड़ता है. बड़ा बेटा जो है, एल्डर सन, चाय की दुकान में काम करता है फैमिली इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए. एंड ही इज अर्निंग अनदर ₹300. 10-year-old daughter is there. She is taking care of all the younger siblings. छोटे जितने भी उसके भाई बहन हैं सबकी वो देखभाल करती है. कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है. सबसे another very shocking thing is that none of the child is going school. They have only 2 pairs of hand-me-down clothes each. 2 ही पेयर कपड़ा है इनके पास. न्यू वंस आर बॉट. नया वाला खरीदा जाता है जबकि बिल्कुल पुराना वाला एकदम फट जाता है. जस्ट सी हाउ सॉरी स्टेट दैट न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेयरेबल. अब पहनने के लायक नहीं रहा पुराना कपड़ा. शूज जो है, जूते एक लग्जरी है. व्हाट अ बैड स्टेट. जूते पहन लिए, जूते मिल गए तो फिर इट्स अ लग्जरी. कोई त्योहार है, देयर इज सम सेलिब्रेशन इन द हाउस, और बर्थडेज तो ये गरीब लोग मनाते ही नहीं है. अंडर द यंगर किड्स आर अंडर नरिश. दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल. ये तो हो गई शहर की कहानी. थोड़ी सी गांव की कहानी भी देख लें. लेट्स अंडरस्टैंड द रूरल केस ऑल्सो. लाखा सिंह इज स्टेइंग इन ए स्मॉल विलेज मेरठ में, उत्तर प्रदेश. फैमिली के पास कोई भी लैंड नहीं है और जॉब्स करते रहते हैं. सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स. वर्क कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है. उसी तरह का इनकम भी है. कभी कभी क्या होता है, दे गेट पेड फॉर ₹50. पूरे दिन के काम के लिए ₹50 ही मिल पाते हैं फॉर अ हार्ड डेज वर्क. कभी कभी इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम. हमेशा पैसा नहीं मिलता है. समटाइम्स दे गेट गेहूं, फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट और दाल, इवन वेजिटेबल्स. फार्म में दिन भर काम कर रहे हैं. 8 लोगों की फैमिली है. 2 स्क्वायर मील्स अ डे. 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है. लाखा जो है वो कच्चे हट में रहता है, कच्चे घर में रहता है, विलेज के बाहर, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. Women of the family, they are spending the day chopping fodder and collecting firewood in the fields. Firewood collect कर रहे हैं fields में. फादर जो है वो टीबी पेशेंट हैं. 2 years ago, 2 साल पहले, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, द फादर पास्ड अवे. टीबी इज अ वेरी बिग एलिमेंट. बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसका अगर रेगुलर मेडिसिन न लिया जाए इट कैन बी वेरी हार्मफुल. ओके. मदर है, शी इज नाउ सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज. वही डिजीज है एंड लाइफ इज स्लोली ईबिंग अवे. एक हिंदी में कहा जाता है, जिंदगी धीरे धीरे कट रही है, किसी तरह से कट रही है. दैट इज स्लोली स्लोली ईविंग अवे. जिंदगी पास हो रही है. एंड विलेज हैज प्राइमरी स्कूल है गांव में. लाखा कभी वहां नहीं गया. ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग जब वो 10 years का था. सिंस देन ही इज वर्किंग.
न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े घर में कोई नहीं पहन पाता है, कभी कुछ सालों में कभी एक बार नए कपड़े मिल गए। साबुन, तेल फैमिली के लिए लग्जरी है, इट्स अ लग्जरी फॉर द फैमिली। व्हाट अ सॉरी स्टेट। अब ये जो अब केसेस ऑफ पॉवर्टी वी आर सीइंग, कुछ चीजें जो कॉमन निकल के आ रही हैं। व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द फैमिलीज? जमीन नहीं है, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, बिग फैमिलीज, illiterate people, illiteracy is there, poor health, malnutrition, हेल्थ बहुत खराब है, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, एंड children before going to the school they start doing the labor work. Why? How can a child be sent to do the labor work? हेल्पलेसनेस है, असहाय हैं, कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही है। दीज ऑल थिंग्स आर सॉरी स्टेट। आप ये देख लीजिए, वुड आई एवर बी एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर माई फैमिली? क्या मैं एंड सपना देखिए क्या है कि फैमिली के लिए एक नया कपड़ा भी नहीं खरीद पा रहे हैं। सो द फार्मर इज थिंकिंग, क्या कभी मैं अपने फैमिली के लिए नए कपड़े खरीद पाऊंगा? बैड कंडीशन, बैड स्टेट। इससे इनको कौन बाहर निकालेगा? हु विल टेक देम आउट ऑफ ऑल दीज? अब ये जब हमने देख लिया 2 केसेस, एक अर्बन केस, एक रूरल केस, तो पॉवर्टी में हंगर है, भूखमरी है, घर नहीं मिल रहा है, लैक ऑफ शेल्टर इज देयर, इट इज अ सिचुएशन। पेरेंट्स अपने बच्चों को घर नहीं भेज पा रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, बीमार, देयर आर सिक पीपल आर अनेबल टू अफोर्ड ट्रीटमेंट। क्या सिचुएशन है ये? Isn't it a very serious situation? Lack of regular job भी नहीं मिल रहा है। Above all, living a sense of helplessness, असहाय हैं, कहीं से कोई मदद नहीं है। So poor people, they are in such a situation जिसमें they are ill treated, हर जगह पे they are ill treated at almost every place. फार्म्स में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशंस, किसी को भी, nobody would like to live in poverty. कोई भी गरीबी में नहीं रहना चाहता है। And the biggest challenge of independent India is to bring millions of its people out of poverty. Government is facing this challenge. A government is trying to make efforts. आगे हम पढ़ेंगे कि what is government doing for to eradicate this problem of poverty. इसको हटाने के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है? महात्मा गांधी always said कि इंडिया को हम तभी इंडिपेंडेंट मान सकते हैं जब पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जब गरीब से गरीब लोगों की भी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होगी, तभी यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब some people are there who keep on researching on these people, social scientists who study on society. तो they are trying to see the levels of income and consumption, कितना इनकम है, कितना कंजम्पशन है, लेकिन poverty is looked through other social indicators. बाकी के indicators भी हैं, like illiteracy level है, lack of general resistance है due to malnutrition, ठीक से खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, then there is lack of access to health care, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, काम भी नहीं मिल रहा है लोगों को, एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। ठीक है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल, सैनिटेशन इज अ प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें हमको एनालाइज करनी है बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन। सोशली दीज पीपल आर एक्सक्लूडेड। गरीब लोगों को हम कभी घर में बैठा के खाना अच्छे से खिला दे, गरीब है तो गरीब है भैया, हमारे घर से तो दूर रहो, हमसे दूर रहो। सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, नाउ दिस इज अ वन वर्ड दैट इज अ न्यू वन दैट हैज कम इन फ्रंट, वल्नरेबिलिटी। गरीब हैं तो गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। पॉवर्टी क्या है? पुअर इज हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग, गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे विद अदर पुअर पीपल। सोशल इक्वालिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर देम, बेटर ऑफ पीपल, बेटर सराउंडिंग्स, सोशल एक्सक्लूजन इज देयर।
सोशल एक्सक्लूजन, सोशली जो इनको हम डिसरिगार्ड करते हैं, इनको जो हम अपने से अलग कर देते हैं, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है। यूजुअल सेंस, इंडिविजुअल्स आर देयर, ग्रुप्स आर देयर हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज। कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं दैट द अदर्स एंजॉय। टिपिकल एग्जाम्पल, इसमें देखो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। We are understanding all these situations with the help of example, where we are finding some individuals and some groups are excluded from facilities, benefits, opportunities. People are enjoying. Typical example is working of the caste system. Caste system में क्या है? People are belonging to certain caste. They are excluded from equal opportunities. Social exclusion क्या है? It may lead to and it can cause more damage than having a very low income. डैमेज ज़्यादा हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, खाली इनकम की बात नहीं है। ओके, सो सोशल एक्सक्लूजन, पहला तो हमको सोशली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गरीब हैं, बेचारे हैं, और सोशली सब लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो इनकम भी बहुत लो है। देन दे आर वल्नरेबल, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, गरीबी के लिए बहुत ज़्यादा दे आर वेरी पुअर। इट इज़ अ मेजर जिसमें कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी इज़ देयर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सर्टेन कम्युनिटीज़ आर देयर, लाइक मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट आर देयर, इंडिविजुअल्स आर देयर, जो कि वल्नरेबल टू पॉवर्टी हैं। अगर गरीबी होती है तो सबसे पहले दीज पीपल आर ओनली पुअर, दीज पीपल आर कंसिडर्ड टू बी बॉर्न पुअर। विडो लेडी इज देयर, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन इज देयर, ठीक है, दे आर रिमेनिंग पुअर इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में पुअर ही रहेंगे। सो वल्नरेबिलिटी क्या है? इट इज डिटरमिन्ड बाय द ऑप्शंस, वॉट एवर ऑप्शंस आर अवेलेबल विद देम। डिफरेंट कम्युनिटीज आर देयर फॉर फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव लिविंग, एक रहने का तरीका होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव लिविंग इज देयर, हाउ मच एसेट इज देयर, what is the education, what are the health facilities, what are the job opportunities, all these are to be looked into and it is analyzed। इन सारी चीज़ों की एनालिसिस होती है on the basis of risk, greater risks are there। natural disasters happen, earthquake, tsunami, terrorism, attack हो गया कहीं से भी, ठीक है, तो दीज पीपल, सबसे पहले इन्हीं लोगों के ऊपर असर पड़ता है। इट इज डिस्क्राइबिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली इफेक्टेड, ठीक है। द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हु आर देयर, दे आर इमीडिएटली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल कैलामिटीज। बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, अर्थक्वेक है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर दीज पुअरेस्ट ऑफ पुअर। On this basis we are deciding the poverty line. Poverty line decide करते हैं, how many people are below the poverty line, कौन सा एक line है which is deciding on what basis it is deciding कि गरीब हैं तो गरीब क्यों हैं। There needs to be certain criterias, okay। Person is considered poor अगर his or her income of or consumption level falls, इनकम लेवल फॉल है, कंजम्पशन लेवल जो है वो गिर गया है बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल, एक मिनिमम लेवल तक, तो ये सारी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल करनी है। और व्हाट इज नेसेसरी, बेसिक नीड्स आर टू बी सेटिस्फाइड। डिफरेंट टाइम्स में इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। इन द फॉरेन कंट्री, इन अमेरिका, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सी इट इज मेंशन्ड हियर, ईच कंट्री हैज गॉट एन इमेजिनरी लाइन। सोचते हैं कि इसके बिलो जो लोग हैं दे आर पुअर। एंड यूएसए में देखो, फॉर एग्जाम्पल, इन यूएसए इफ अ पर्सन इज नॉट हैविंग अ कार, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर। कार पुअर मतलब खाने की प्रॉब्लम किसी को नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट नोबडी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। इंडिया में ओनिंग अ कार इज लग्जरी, एंजॉयमेंट, ओके। तो पॉवर्टी लाइन जब हम डिसाइड करते हैं, वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया,
मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट इज कंसिडर्ड। सबसे पहले हम फूड रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्लोथिंग देखते हैं, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, educational and medical requirement, these all things are also to be। खाली खाने को ही लेके सारी चीजें हम डिसाइड नहीं कर सकते। We cannot decide the poverty line on the basis of food requirements. Okay, these physical quantities are multiplied: footwear, fuel, light, education, medical requirement is also very important. A person who is barely minimum able to manage the food, बाकी काम कैसे करेंगे? तो फूड रिक्वायरमेंट में वी आर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन, डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट इज देयर, फूड आइटम्स आर देयर जैसे सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर, ऑल दीज, ठीक है, दीज आर प्रोवाइडिंग कैलोरी नीड्स डिपेंड ऑन एज, सेक्स, टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन इज डूइंग। एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज, कैलोरी रिक्वायरमेंट वाला फेज जो है वो प्लीज देख लीजिए। फॉर द पर्सन हु इज लिविंग इन द रूरल एरियाज 2400 कैलोरीज खाना उसको मिलना चाहिए, एंड जो अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज। कैलोरी काउंट होता है, अकॉर्डिंग टू द कैलोरी काउंट इट इज डिसाइडेड कितना खाना किसको मिलना चाहिए, हाउ मच फूड शुड बी गिवन टू विच पर्सन। एंड पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज ज्यादा से ज्यादा मेहनत वो करते हैं, मोर एंड मोर ऑफ फिजिकल वर्क इज इन्वॉल्व। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज इज वेरी हाई देन इन अर्बन एरियाज। तो मनी दैट इज स्पेंड पर कैपिटा फॉर बाइंग दिस कैलोरी, ठीक है, जितना पैसा स्पेंड हो रहा है is revised periodically. After every interval it is revised कि कितना है, what is the calculation, how much is the food requirement, accordingly it is decided. Now these calculations are giving us the poverty line for person per person. अगर एक इंसान है, for a person was fixed at ₹816 per month, 816 रुपया पर मंथ एक आदमी अगर कमा रहा है इन द रूरल एरियाज, एंड 1000 रुपीज़ फॉर अर्बन एरियाज, तो उसकी आराम से ज़िंदगी खाना मिल जाएगा। लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट में भी दे कैन मैनेज। हायर अमाउंट अर्बन एरियाज में इसलिए है, बहुत सारा एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन सेंटर्स। 2011-12 में जैसे 5 मेंबर्स की एक फैमिली है हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज, गांव में रह रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग लेस देन 4080 पर मंथ, तो वो बिलो पॉवर्टी। दिस इज द, देखो डेटा जब भी देना है आपको बेटा, यू ऑल हैव ऑलवेज टू गिव द डेटा एज पर द ईयर। प्लीज गिव द डेटा एज पर द ईयर। सिमिलरली फैमिली इन द अर्बन एरियाज वुड बी नीडिंग 5000, 5 लोगों की फैमिली है तो 5000 रुपीज पर मंथ मिलना ही चाहिए, देन ओनली द कैलकुलेशंस विल बी परफेक्ट। सो पॉवर्टी लाइन हर एक आफ्टर एवरी 5 years इट इज रिव्यूड। 5505 सालों में 5000 रुपये में काफ़ी, फिर द मनी वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस ना। 5000 रुपये कमा रहे हैं तो क्या पूरी फैमिली का खर्चा चल जाएगा? तो ये जो सर्वे है इट इज कैरिड आउट बाय द NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एंड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर लाइक द वर्ल्ड बैंक, दे आर यूजिंग अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के लिए एक स्टैंडर्डाइज तरीका है, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे। पर डे पर पर्सन $1.90 अगर कमा रहे हैं, देन दे आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन माय डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंट पॉवर्टी एस्टिमेट्स आर देयर। पॉवर्टी एस्टिमेट्स को समझना बहुत जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दी पॉवर्टी एस्टिमेट्स and we have to understand it with the help of this data. Children, this data is given there in your book table 3.1, जिसमें the data is given right from 1993-94 to 2011-12. The latest data are mentioned here, rural areas and urban areas, and then total. What is the poverty ratio?
How are we determining the number of poor people in millions? If we are not calculating or finalizing these data, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो we cannot answer the questions related to poverty estimates. So just please go through it. Once you are thorough with it, एक बारी आप इसको ध्यान से देखेंगे, then you would be able to explain the poverty estimates. It's very important, my dear students. So just go through it and just see how to decide the poverty estimates finally. Okay. So here we come to the end of today's video. Poverty estimates we will be discussing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.